अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 द पोएम की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज में पार्ट ए है अंडरस्टैंडिंग द पोएम, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीडेड फॉर द ट्विग टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। इसका आंसर है द ट्विग शुड बी प्लांटेड, वाटर्ड and set where the sun will be above it to become healthy and strong. In what ways will the twig develop if it is cared for? इसका आंसर है if cared for the twig will develop into a tall bush with many flowers and sparkling leaves. What is a closet and what might be found there? इसका आंसर है a closet is a large cabinet or area like a cupboard for storage. In it there may be odds and ends, such as mouse trap and blunted tools. Is the closet mentioned in the poem used much? How do we know? इसका आंसर है the closet is not used much. There are mouse traps in it. A mouse trap is not used very often, and the tools are blunt, again showing that they are seldom used. Will the twig grow in a closet? Why? इसका आंसर है the twig will not grow in a closet because it is too dark and there is little fresh air inside. What is the twig compared to in the second stanza? इसका आंसर है the twig is compared to an old twisted nail. Do you think the poet has a message or messages for the reader? इसका आंसर है look after and encourage something, even if it is small and appears useless. The poet is also telling us to nurture and look after young living things, children for example, and by doing so they will blossom into wonderful beings. If children are neglected and uncared for, they will not reach their full potential. क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड वेयर दीज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द पोएम। ढूंढिए कि इस पोएम में इन एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कहां पर हुआ है। रीड द लाइंस अ नंबर ऑफ टाइम्स। इन लाइंस को काफी मर्तबा पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द एक्सप्रेशंस, और इन एक्सप्रेशंस के मतलब को समझने की कोशिश करें। एक्सप्लेन द मीनिंग्स इन योर ओन वर्ड्स। इनके मीनिंग्स अपने लफ्जों में बताएं। फर्स्ट है इट इज ओनली अ लिटिल ट्विग, जिसका मतलब है इट इज नथिंग मोर, इट अपीयर्स इनसिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, ही इज ओनली अ स्मॉल बॉय, हाउ कैन ही बी एक्सपेक्टेड टू डू दिस हार्ड टास्क। सेकेंड है एंड सेट इट वेयर द सन विल, जिसका मतलब है एंड प्लांट इट वेयर द सन विल। थ्रस्ट हाइदर एंड दाइदर, जिसका मतलब है ग्रो vigorously and healthily all over the place. Recover themselves, इसका मतलब है regain their upright posture. Clash one upon another, जिसका मतलब है brush against या collide with each other, एक दूसरे के साथ टकराना। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस with reference to context. फर्स्ट है what does it refer to, जिसका आंसर है the word it refers to the twig. सेकंड है where are the mouse traps and blunted tools, इसका आंसर है the mouse traps and blunted tools are in the closet. What might it look like later if it is left with the mouse traps and blunted tools, इसका आंसर है the twig might look like an old twisted nail. पार्ट बी है वर्किंग विद वर्ड्स, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड वर्ड्स ऑफ द ऑपोजिट मीनिंग इन द पोएम। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इनके मुतरादिफ यानी उल्ट लिखने हैं। फर्स्ट है लार्ज, लार्ज का ऑपोजिट होगा लिटिल। सेकंड है शॉर्ट, शॉर्ट का ऑपोजिट होगा टॉल। बिलो, बिलो का ऑपोजिट होगा अबव। फोर्थ
few. few का opposite होगा many. Fifth है stillness. stillness का opposite होगा freshness. Sharpened. sharpened का opposite होगा blunted. Strengthen. strengthen का opposite होगा waste या shrivel. Straight. straight का opposite है twisted. Still यानी not moving, इसका opposite है blowing. Close, इसका opposite है open. Question number 2 है think of suitable adjectives to go with these nouns. You may find one or two in the poem. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको कुछ nouns दिए गए हैं, आपने इनकी एक से ज्यादा यानी 2 खसूसियात बता देनी है. फर्स्ट है क्लोजेट. इसका एडजेक्टिव है डस्टी या डार्क या रेयरली यूज्ड क्लोजेट. सेकंड है नेल. इसका एडजेक्टिव है रस्टी, ट्विस्टेड या आयरन नेल. थर्ड है विंड यानी हवा, जिसका एडजेक्टिव है ब्लोइंग या कोल्ड या हार्श विंड. फोर्थ है ग्रास ब्लेड्स, जिसका एडजेक्टिव है ग्रीन या लश ग्रास ब्लेड्स. फिफ्थ है रूट्स, जिसका एडजेक्टिव है लॉन्ग या ट्विस्टेड या थर्स्टी या विदर्ड रूट्स. लास्ट है लीव्स, जिसका एडजेक्टिव है रस्टलिंग या ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन या न्यू ओल्ड लीव्स. पार्ट सी में कहा हुआ है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट सेंटेंसेस विच आर नॉट कंप्लीट. आपने बताना है कि इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस मुकम्मल है और कौन सा नामुकम्मल है. गिव अ रीजन फॉर योर आंसर ईच टाइम, और आपने इनके साथ इनकी रीजंस भी लिखनी है. फर्स्ट है शी लाफ्ड प्लीजेंटली. ये कंप्लीट है और इसका रीजन है देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, देयर इज अ फाइनाइट वर्ब, इट मेक्स कंप्लीट सेंस. द लार्ज ब्लैक डॉग, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है बिकॉज देयर इज नो वर्ब ऑफ एनी काइंड, देयर इज नो प्रेडिकेट. वॉकिंग अलोंग स्लोली, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि देयर इज नो फाइनाइट वर्ब, देयर इज नो सब्जेक्ट, वी डू नॉट नो हु और व्हाट इज परफॉर्मिंग द एक्शन. सिट डाउन, दिस इज कंप्लीट सेंटेंस. इसका रीजन है देयर इज अ फाइनाइट वर्ब, देयर इज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, you. The engines whistle, ये incomplete sentence है because there is no finite verb, there is no predicate. Last है they played cricket on Sunday. ये complete sentence है क्योंकि there is a finite verb, there is a subject and a predicate. Question number 2 है underline the proper nouns in the following sentences. यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं, आपने जो भी यहाँ पे noun लिखा हुआ है उसे underline कर देना है. First है राहील and हनीफ are going to Karachi on Tuesday. इसमें noun राहील है, इसके नीचे underline कर देना है. हनीफ है और कराची है और Tuesday है, इन चारों के नीचे underline कर देना है. Next है they are going on the train which leaves Lahore at 2 o'clock. लाहौर इसमें noun है तो लाहौर के नीचे underline कर देना है. From Karachi they are going to fly to Dubai on an Emirates plane. इसमें कराची, दुबई और Emirates ये तीनों noun है, इन तीनों के नीचे underline कर देना है. They will stay with their friends Mr. and Mrs. Jenkins at 5 Park Lane, Dubai. इसमें Mr, Mrs, Jenkins, Park
पार्क लेन, दुबई। ये पांचों नाउन है, इन पांचों के नीचे अंडरलाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मेक अ लिस्ट ऑफ द कॉमन नाउन्स इन द फॉलोइंग पैसेज। आपको नीचे पैसेज दिया गया है, आपने इनमें से नाउन्स को ढूंढना है और इसे एक लिस्ट में लिख देना है। इट वॉज अ सनी डे, यहाँ पे डे नाउन है। द चिल्ड्रन हफ्ड एंड पफ्ड एज दे रोड अप द हिल ऑन देयर बाइसाइकल्स। यहाँ पे चिल्ड्रन, हिल, बाइसाइकल्स, ये तीनों नाउन है। When they got to the top, they dismounted. यहाँ पे top noun है। Lay their bicycles on the grass. Grass भी noun है। And sat on some large rocks beside the road. Rocks और road noun है। Far below them, they could see a river winding its way past a small village. River, way, village, यहाँ पे ये तीनों नाउन है। All the human figures below looked minute. Figures noun है। Like tiny toys in a make-believe land. Land भी noun है। Question number 4 है which of the following are proper nouns? यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और आपने इनमें से बताना है कि कौन से नाउन्स प्रॉपर नाउन्स हैं। सबसे पहले तो प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी खास शख्स, जगह या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। मेक अ लिस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन द कैपिटल लेटर्स। आपने एक लिस्ट बनानी है और ये याद रखना है कि ये जो भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। मतलब प्रॉपर नाउन जो आप लिखेंगे लिस्ट में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। हिंट है देयर आर 14 ऑफ देम, कि यहाँ में से सिर्फ 14 ही ऐसे नाउन हैं जो कि प्रॉपर नाउन हैं। फर्स्ट है माउस। जो माउस है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये सिर्फ नाउन है। सेकंड है पाकिस्तान। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। फ्लावर, फ्लावर प्रॉपर नाउन नहीं है। सैटरडे प्रॉपर नाउन है। वीनस प्रॉपर नाउन है। ज्योग्राफी प्रॉपर नाउन नहीं है। स्टालिन प्रॉपर नाउन है। शुगर प्रॉपर नाउन नहीं है। अनवर प्रॉपर नाउन है। स्विम प्रॉपर नाउन नहीं है। मदरिद प्रॉपर नाउन है। टुक प्रॉपर नाउन नहीं है। दे प्रॉपर नाउन नहीं है। कैप्टन खान प्रॉपर नाउन है। नाइल प्रॉपर नाउन है। मिस्टर जैकब प्रॉपर नाउन है। फिएट प्रॉपर नाउन है। हेयर प्रॉपर नाउन नहीं है। हूल प्रॉपर नाउन नहीं है। सेक्रेट प्रॉपर नाउन नहीं है। टेम्पल प्रॉपर नाउन नहीं है। माजिद प्रॉपर नाउन है। इस्लाम प्रॉपर नाउन है। होम प्रॉपर नाउन नहीं है। फ्रॉग प्रॉपर नाउन नहीं है। टेनिस प्रॉपर नाउन नहीं है। जैम प्रॉपर नाउन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस प्रॉपर नाउन है। टाइगर प्रॉपर नाउन नहीं है। मीनारे पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। फिल्म प्रॉपर नाउन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि ये वाले नाउन्स, इन नाउन्स में से 14 नाउन्स ऐसे हैं जो प्रॉपर नाउन्स हैं। अब आपने याद ये रखना है कि जब आप इन प्रॉपर नाउन्स को लिखेंगे तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है ट्राई टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम दीज प्रॉपर नाउन्स। यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए गए हैं, आपने इनके एडजेक्टिव्स बनाने की कोशिश करनी है। रिमेंबर टू स्टार्ट द एडजेक्टिव्स विद अ कैपिटल लेटर। ये याद रखना है कि जब आप इन एडजेक्टिव्स को लिखेंगे तो इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए। फर्स्ट है ब्राजील। ब्राजील का हम बना सकते हैं ब्राजीलियन। सेकंड है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ को हम कर सकते हैं एलिजाबेथन। थर्ड है मार्स। मार्स का हम कर सकते हैं मार्टियन। लास्ट है स्पेन।
स्पेन का हो सकता है स्पेनिश। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।